Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today topic is a measure for prevention and settlement of the industrial dispute conflict, part 1. In this lecture, we will talking about the machineries or the technique and the method for resolving dispute conflict that arises in industry. This is very important topic and in examination point of view, and this also a very vast topic. And so we will cover it into two parts, part 1 and part 2. This is the part 1 of the machineries for the industrial dispute, and part 2 we will cover in the next lecture. So my dear student, let's begin with the meaning part. Meaning of the industrial dispute. As you know, the industrial dispute we have already discussed over the last lecture. Industrial dispute क्या होता है? As per the section, as per the act of the Indian Dispute Act के according, सेक्शन 2 के में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है. And the terms industrial dispute means any dispute or the differences between employer and employees, employer and employer, and employees and employees. It means that any dispute or the conflict that arises between employer and employees, कर्मचारी और मालिक के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, और जो मालिक और मालिक के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और कर्मचारी मींस एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, वर्कर एंड वर्कर के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, जो सब डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, दिस इज डिस्प्यूट आर नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. What are the main reasons of this dispute? This reason maybe is connected with the employment or non-employment, or the terms of employment, or the condition of the employment of any person. It means that the issue can be arises related to the issue. Maybe it could be related to the employment, non-employment issues, or it related to the terms of the employment or condition of the employment of any person or the worker or the employees that work in the organization or in an industry. That this is all about the industrial conflict. So industrial conflicts क्या होते हैं? It basically are differences that created between the employers and employees. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो सकते हैं, एंड इट कुड आल्सो बी हैपन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज के बीच में हो सकते हैं. तो 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट्स. तो कोई भी पार्टीज इसमें हो सकता है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स हो. So this is all about the dispute part, but in this lecture we will talking about the measures for the prevention of settlement of the industrial dispute. जो ये सब disputes हो रहे हैं, जो conflicts हैं, इन सब के disputes को हम किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं और सेटलमेंट कर सकते हैं. सो वी विल टॉकिंग अबाउट दे आर द 2 टाइप ऑफ मशीनरीज और द मेथड्स एंड मेजर्स फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. जो ये डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इतने विवाद हैं, जितने भी झगड़े हैं कंपनी में और इंडस्ट्रीज में, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिड्यूस, और यू कैन से इज देयर एनी मेथड फॉर resolving these kind of issues? Yes, there are the 2 machineries or the methods, you can say machinery या methods or measures हो सकते हैं, or you can say technique by which we can resolve the conflicts that arises in the industries. What are these machineries? Machineries basically 2 types की हो सकती है. Prevention machinery हो सकते हैं, means prevention measures हो सकते हैं, and the settlement measures हो सकते हैं. So it means that we can resolve the issues of the conflict or the disputed by 2 technique. That is, first is preventive measures, or second is settlement measures. In this particular lecture, we will talking about the preventive measures. That is a part 1, and in the next lecture we will talking about the settlement measures. So now let's begin with the first one. Preventive measures क्या होते हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट मीनिंग ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स. एज यू नो दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर. तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. एंड इन द सेम मैनर कंपनी में, इंडस्ट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ना हो, दैट्स वाई वी हैव टू टेक अप प्रिकॉशन, और यू कैन से द प्रिवेंटिव मेजर्स आर द बेसिकली आर सम मेजर्स विच हैव बीन मेड in the Industrial Dispute Acts to avoid the dispute that arises in the industry. These are the methods which can be taken into consideration for the avoidance of the disputes. So these are the methods जो कि हम
before the conflict that arises, we have to take some kind of a step, and this step is basically our avoidance steps, or you can also say it as preventive measures we should have to take before the conflict arises. तो जो स्टेप हम कॉन्फ्लिक्ट से पहले हम ले सकते हैं, इन स्टेप को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस हो ही ना कंपनी में. सो व्हाट आर these measures? These basically are six measures or six step or the method we can take under the preventive measures. Preventive में हम six तरीके से six method के through we can resolve the issue. Preventive में सबसे the first one is the worker participation management. Second is collective bargaining के through, and the third is grievance procedure के through, tripartite bodies के through, and the code of disciplines के through, and the standing order के through we can resolve or we can avoid the dispute that arises in the company. This is basically our preventive measures we should take to avoid the dispute that arises in the company. Let's talk about the first one, that is a preventive measures. The first one, preventive measures, I have explained here the some of the major preventive measures for handling the industrial dispute in India. India में जो machineries preventive measures में आती है, these have we already discussed that preventive measures, collective bargaining, grievances, tripartite, code of discipline, and sixth one is standing order. And we will discuss one by one. Let's start with the worker participation management. Participation in the management. Worker participation in management, it basically means that it is a method where the worker are allowed to consult it and to have a say in the management of the unit, or you can also say it as industrial democracy. It means that this is a method where the worker is involved in a decision making process, or you can say involved in a functionality of the unit, and then the worker is feel like the part of the family and the part of the unit, and it automatically it could control the dispute and the conflict that arises, and it easily resolve the issue. And we can say that through this worker participation and management, वर्कर की पार्टिसिपेशन किसी भी यूनिट में वर्कर को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, ताकि वर्कर जो है वो फील लाइक फैमिली, they feel like involvement, and they feel motivated while doing any kind of work in the company. तो वो जब उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, किसी भी वर्कर को पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, किसी भी मैनेजमेंट उनके डिसीजन मेकिंग में हम वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे कंपनी में उसके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, देन दिस इज अ वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट. तो इससे क्या होता है, इसमें बेसिकली वर्कर को अपनी कोई बात कहने के लिए दे हैव अ राइट टू से इन द मैनेजमेंट में उसको कहने के लिए उसको मौका मिलता है. एंड इट्स लाइक अ डेमोक्रेसी, इट क्रिएटेड अ डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. इट मीन्स द वर्कर हैज आल्सो राइट टू से इन द मैनेजमेंट. And this is a basically involving the labor in the management process. Management process means in their decision making process और the functionality of the unit. तो वर्कर को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वर्कर जो है कि वो भी अपने मैनेजमेंट में अपनी बात को रख सके. तो दिस इज द मेथड वेयर वी कैन से दैट वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वर्कर अपनी इश्यूज उसके कोई भी क्रिएट होंगे तो अपनी डिसीजन मेकिंग के थ्रू वो इन इश्यूज को इजीली कम्युनिकेट कर सकता है विद द मैनेजमेंट. or if the worker has a right to say in the management, they can easily resolve the conflict that arises in the company. तो वो easily अपनी बात को कह सकता है और कोई भी conflict arises होंगे ही नहीं. तो this is the one of the best method. Through this we can avoid the dispute in the industry. And how we can ensure the work participation and the management, they are the important schemes of the work participation management are basically work committee के थ्रू हम कर सकते हैं. दिस इज द बाई पार्टीज बॉडी. जब भी हम कंपनी में लेबर के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए दो पार्टी का यूज करते हैं, तो इस बॉडी को हम बोलते हैं बाई पार्टीज बॉडी, बाई पार्टी बॉडीज. और बेसिकली इसमें वर्क कमेटी के थ्रू हम वर्कर को इन्वॉल्व कर सकते हैं. वर्क कमेटी इज बेसिकली it's a consultative method committee where the worker are involved,
एंड वर्कर को उस कमिटी में इन्वॉल्व किया जाता है, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, और दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वर्क कमिटी, और किसी पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू देयर फंक्शन और फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन रिलेटेड हो सकते, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। इस कमेटी में वर्कर को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंसंट्रेटेड काइंड ऑफ committee. And another method where we can involve the worker is that the joint management council. Joint council management means when the whole company is combined together and the worker is also involved in that management council. तो यहाँ पर भी उनको they also get involvement, and they have a right to say in the management. And through the shop council, the worker also involved in a work participation. You can see shop council के थ्रू particular unit के थ्रू उनको इन्वॉल्व किया जाता है, काउंसिल बना जाती है, एक ज्वाइंट काउंसिल होती है जिसमें कि ओवरऑल पूरी कंपनी से रिलेटेड काउंसिल्स बनाई जाती है। और इन सब मेथड्स के थ्रू, इन सब प्रोसीजर के थ्रू हम वर्कर का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग इन अ वर्क कमेटी, ज्वाइंट मैनेजमेंट council and shop council. Over and all, we can say that it's the main purpose is involving the worker in the management related to their decision making process or the functionality of the company, or related to the worker related matter will be discussed in this committee. So worker also get opportunity to right to say in this in this way. And this worker participation management is also called as labor participation. इसको labor participation भी कहते हैं क्योंकि worker are involved, so the labor worker की जगह हम labor word can we can also use. It also known as employee participation in the management. Employees को involve किया जाता है, that's why it also called as employee participation management. And it ensure the maximum employer and employee collaboration. What it does, it will basically involve the, it basically collaborate the or coordinate the employer and employee, and दोनों को ही involve करता है, and both party employer and employee combine together and to make a combined decision. So we can say that what the main objective of the worker participation in the management is basically establishing the industrial democracy in the company, and it involved everyone in the company, and it strengthened the labor management cooperation, and thus we can say it maintained the industrial peace and harmony in the company. And we can also say that the business now is realizing the fact that they focusing toward the maximization of the economic welfare, and rather than the maximization of the profit. So we can say that over and all, we can say the worker participation in the management is basically the is basically to raise the level of mental and emotional involvement of the worker in the company. तो यहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है वर्कर का मेंटल एंड इमोशनल, एंड इट बूस्ट अप द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। एंड अगर इस तरह का बूस्ट अप होगा तो कोई भी तरह का इश्यूज क्रिएट होगा ही नहीं, एंड इफ इश्यूज आर नॉट क्रिएटेड or conflict are not created, so it not give rise to any kind of a dispute in the company. So this is one of the best method of preventive measure. We can through this method we can ensure that any kind of dispute could not be arises in the company. तो this method के थ्रू हम एक वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स जिसके थ्रू हम कंपनी में कोई भी तरह का डिस्प्यूट अराइजेस होने ही नहीं दे सकते, तो वर्कर पार्टिसिपेशन के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं। This is all about the worker participation in the management. This is the first method that we can use for the preventive measures. Now moving towards the second method, that is a collective bargaining. Collective means combined together. Bargaining is negotiating. The सब मिलकर, सब means you can say the collective bargaining is basically is a term used to settle the dispute. This is one of the method where we can settle the dispute or the conflict through a bargaining process. Bargaining is negotiation के through हम dispute को settle down करते हैं, and this is undertaken by the this bargaining is basically done by the representative of the group of the worker on the one hand, and on the other hand employer on the other hand. We can say that the two parties involved in a collective bargaining, the worker group and the management group. The worker group is basically represented by the trade union. The trade union जो होती है, they work in from
दे वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वर्कर साइड। और द मैनेजमेंट ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयर के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं। The worker and the management both come sit together and discuss over the issues of the employees and the employer। तो दोनों अपने issues को discuss करते हैं and they both negotiating over the issues that arises in the company। तो दोनों मिल बैठकर आपस में अपने issues को discuss करते हैं, worker and the management के जितने भी groups होते हैं, and they combine together and they come together to a mutual decision। some point of view worker कुछ बातों में agree करते हैं, the management also agree on the some point of view of worker, and they both together sit together and come to the mutual decision regarding the issue that arises in the company। And we can say that collective bargaining is basically include, there are the three processes, the three steps we is taken into the collective bargaining। First, कलेक्टिव बार्गेनिंग में नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन ओवर द इश्यूज ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, दोनों नेगोशिएट करती हैं अपने इश्यूज को। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनफोर्समेंट, एंड जब नेगोशिएशन हो जाता है एंड द सम पॉइंट ऑफ व्यू, सम पॉइंट के बाद बोथ पार्टी एग्री ओवर द सम पॉइंट्स ऑफ द देयर पॉइंट्स। तो दोनों अपनी पार्टीज जब अपनी पॉइंट्स में एग्री हो जाती हैं और दे come to a mutual decision, then a contract is created between the management and the worker। तो दोनों एग्री हो जाती हैं and they come to a mutual decision regarding the issue। तो जब दोनों एग्री हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एडमिनिस्टर्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। तो दिस इज बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग में नेगोशिएशन होता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनफोर्समेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हुआ है ओवर द इश्यू जो भी हुआ था उसके बीच में, जो भी उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्समेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू होगा। और कलेक्टिव बार्गेनिंग में इंश्योर किया जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अपने हिसाब से वैसे ही तरीके से रिजॉल्व होगा काम। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी जो भी टर्म्स और कंडीशन होती है, दिस इज एंश्योर, दिस इज बेसिकली is confirmed by the collective bargaining process। तो collective bargaining administration and the enforcement ensure किया जाता है कि contract जो भी हुआ है worker and management के बीच में, they basically ensure the administration and enforcement process। और बेसिकली एडमिशन एनफोर्समेंट में बेसिकली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर डिसाइडेड होते हैं, दोनों अपनी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट दे ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज दैट अराइजेज इन द कंपनी। तो दोनों मिलकर अराइजेस जो भी इश्यूज होते हैं उनको सुन करता है। और बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग में नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही ना हो। So this is one of the method we should have to be take before the conflict arises in the company। This is the one of the second method we can use for the avoidance of the conflict। तो conflict ना हो इस वजह से पहले ही collective bargaining process use किया जाता है। This is a process used at the plant and industry level। This is one of the method that we can use in the plant and machinery or the manufacturing kind of industries। We can say the in collective bargaining क्या है, over and all we can say that it is a continuous process of the negotiation between the representative of the labor। representative of the labor कौन होते हैं, ट्रेड यूनियन होती है, एंड द मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब मिलकर रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट ऑफ द डिफरेंसेस, अपने डिस्प्यूट और डिफरेंसेस को नेगोशिएट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, और दे कम टू अ बायलैटरल एग्रीमेंट, दे कम टू अ contract formation without intervention of the third party, without involving the third party। they come to a bilateral agreement or in a contract formation, and they come to a mutual decision that this way we can resolve the issue, and this the way to resolve the issues, the terms and condition is decided under the contract procedure। this contract procedure is administered under the कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम पूरा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैनेजमेंट और द वर्कर के बीच में इश्यू से रिलेटेड, वो एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट ढंग से हो। दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग। दिस टॉपिक इफ वी विल study in the next lecture, this is a particular topic in the examination point of view, this question can be asked
in a particular, in a separately. So we will discuss this topic separately in the next lecture video, in upcoming videos. So this is all about, this is basic idea I have given you, what is the meaning of the collective bargaining and how it we can use for the preventive measures. Now moving toward the third, we can say preventive measures we can take before any kind of a conflict is arises. तो conflict arises ना हो, इस वजह से हम कुछ थर्ड टाइप का जो मेथड वी कैन यूज, इट इज अ ग्रीवांस प्रोसीजर. ग्रीवांस मीन्स होता है शिकायत, और you can say the problems. As you know that no dispute arises all of sudden before any conflict. As you know that कोई भी dispute जो होता है, it cannot be arises all of sudden, or it's basically, it gives a symptom of conflict in the enterprises. If you deeply analyze that in industries, dispute before the dispute arises or the conflict arises, it gives us some kind of a signal, or you can say some kind of symptom it gives. So we can say that before any kind of a conflict or the problems and the grievances occur, you can understand that problem in its initial stage. It can easily stop through its initially in its initial stage. We can say that हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को उसके इनिशियल स्टेज में रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसको डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी अराइजेज जब होते हैं वो ऑल ऑफ सडन नहीं होते हैं. तो हम उन कॉन्फ्लिक्ट को, उनके सिम्टम्स को हम एनालाइज करके वी कैन इजीली स्टॉप देयर इन देयर इनिशियल स्टेज. तो इनिशियल स्टेज में रोक सकते हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले ही ना, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट जैसी कंडीशन क्रिएट ही ना हो. So we can say the grievance process is one of the way through which the company can take initiative to resolve the issues that arises between the company. So this is the one of the way. So we can say it is must develop the grievance process. कैसा होना चाहिए? It should be the transparent and efficient process of settling the grievances. If any kind of a conflict or the problem arises in related to the company or related to the employees, so employees को कोई भी grievances and problems होते हैं, they should be resolved transparently and efficiently in the company in its initial stage. And we can say that अगर company इसको transparently और efficiently initial stage में resolve कर लेगी तो कभी भी conflict arises होंगे ही नहीं. तो we can say that grievance process is basically handled in a 4 stage. This is the 4 stages where we can handle the grievances of the employees. How we can analyze this is the diagram I have put it here. So the first stage is that how we can we can resolve the grievances. The first stage is that firstly you will if employees has any problems or the complaint or the issue related to the employer, they complain to their section head. Firstly उसको अपनी initially head जो उसका सबसे superior, सबसे first number पे जो head होगा, the superior one, he should have to be informed their superior immediate senior one. And if any kind of problems arises, and this if employee को कोई भी problem होती है, they should firstly inform the section head. तो उसको अपने section head को inform करना पड़ेगा. And if the section head has resolved this issue within the 5 working days, अगर वो इस issue को 5 working days में resolve कर देता है, and then the employees can happy with the decision. और अगर employees उसकी उस issues इस resolving issues जो भी section head ने जो भी solution provide किए हैं, वो अगर employees happy है, then they any kind of dispute is stop in its initial stage. तो अगर कोई भी अगर एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम है और सेक्शन हेड ने उसको रिजॉल्व कर दिया विद इन द वर्किंग 5 days में उसे रिजॉल्व कर लिया, तो एम्प्लॉइज को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होगा. बट if the section head is not able to provide a adequate solution to the problems of employees within the 5 days, if not able to provide, अगर वो नहीं कर पाया, it means not resolving the issues of the employees, then the employee can inform to the departmental head. अगर
सेक्शन हेड कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया, देन एम्प्लॉइज क्या करेगा, एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दे मूव टूवर्ड द सेकंड स्टेज, दैट इज अ सेकंड स्टेज में क्या होगा, दे हैव टू बी राइट अ रिटन एप्लीकेशन रिगार्डिंग देयर इश्यूज एंड कंप्लेन टू द डिपार्टमेंटल हेड, अपने डिपार्टमेंट हेड को इन्फॉर्म करेगा दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू दिस एंड दे हैव टू इन्फॉर्म इन अ रिटन एप्लीकेशन। और यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड का वर्क क्या होगा, they have again they have to take up 5 working days, and in these working days they have to resolve the issues of employee. If the department has able to or resolve the issue of the employee in its second stage, then the employee if any kind of conflict could not be rises, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। मगर इफ द डिपार्टमेंट हेड अगर 5 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं कर पाया कोई भी इशू को, या सेटिस्फाई नहीं कर पाया थ्रू देयर रिजॉल्विंग सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर पाया, देन द एम्प्लॉइज जो होगा वो अपने थर्ड स्टेज में मूव टूवर्ड्स द सेकंड थर्ड स्टेज, दैट इज अ डिविजनल हेड, दे कंप्लेन टू द डिविजनल हेड, क्योंकि देयर एम्प्लॉइज प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व under the stage 1 and under the stage 2. Now the employees is resorted the stage second third and in complaint to the divisional head. Now the complaint is moving towards the divisional head, क्योंकि जो कंप्लेंट थी एम्प्लॉइज की, जो इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, ग्रीवेंसेस थे, इज नॉट रिजॉल्व अंडर द स्टेज 1 एंड स्टेज 2. नाउ द एम्प्लॉइज मूविंग टूवर्ड्स द डिविजनल हेड, और डिविजनल हेड को अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, एंड दे ऑल्सो जो एम्प्लॉइज है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिविजनल हेड को बताएगा. देन डिविजनल हेड हैव टू टेक अ 10 working days, and if the division head is able to provide the solution to the employed related to their issues within the 10 days working days में अगर resolve कर पाता है, then this issue is resolved under this stage. but अगर एम्प्लॉइज जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है डिविजनल हेड के सोल्यूशन से, उसकी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं होते हैं, देन व्हाट द एम्प्लॉइज डू, एम्प्लॉइज मूविंग टुवर्ड द स्टेज 4, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजेस. और यहाँ वाली स्टेज में बेसिकली क्या होगा, द एम्प्लॉइज होंगे तो कंप्लेन टुवर्ड्स द ट्रेड यूनियन, वो अपने ट्रेड यूनियन से अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज वेरी डेंजरस काइंड ऑफ a stage where the trade union is involved. It means we can say that if the any kind of we can say that if any company do not want to be want that their employees come to that stage, कंप्लेन लेवल स्टेज नंबर 4, कि कोई कंपनी नहीं चाहेगी वो कोई भी एम्प्लॉइज उसके ट्रेड यूनियन तक अपनी बात को रिजॉल्व करने के लिए जाए, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन में बात पहुंचेगी देन इट मीन्स द इशू जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का, इट इशू इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो ट्रेड यूनियन है वो इन्वॉल्व हो गई है. तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड स्टेज फॉर द कंपनी. तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज वांट कि देयर एम्प्लॉइज problems or their issue is resolved within the 3 stages. तो stage 1, stage 2 और stage 3 में ही इसकी एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, एंड द एम्प्लॉइज इज नॉट मूविंग टूवर्ड द स्टेज 4, क्योंकि स्टेज 4 में कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज हो जाएगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज हो गया तो इट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, एंड इट क्रिएटेड अ वेरी डिस्टर्बेंस इन द कंपनी. तो दिस इज वन ऑफ द वे. तो कंपनी हमेशा चाहेगी ग्रीवेंस प्रोसेस के थ्रू कंपनी की जितनी भी एम्प्लॉइज है दे रिजॉल्व देयर इशू थ्रू द ग्रीवेंस प्रोसीजर, और 3 stages में अगर रिजॉल्व हो जाएगा then it would be better for the company as well as the employee. And this is the one of the preventive measures so that it not comes to the dispute or the conflict level पर नहीं आएगी बात को भी. So we can say that if the company is able to resolve the problems of their employee in its initial stage 1, stage 2 and stage 3, then the conflict is not arises. But if company or the employer is not able to provide solution to their problems of their employees within that stage 3, then conflict is arises and it comes to the trade union level. And this is all about the grievance procedure. Grievance procedure में stage 3 तक problem resolve होना चाहिए, and the company always want कि initial stage में ही problem जो हो resolve हो जाए. Now moving towards the fourth bodies or the preventive measures,
uh, um, to prevent or to avoid the dispute that arises in the company. तो फोर्थ स्टेप जो होता है बेसिकली ट्राई पार्टीज बॉडीज होते हैं. ट्राई पार्टीज बॉडीज क्या होते हैं? ट्राई पार्टीज बॉडीज बेसिकली मीन्स कंपोज्ड और स्प्लिटेंड into three part. Triparties means tri means three, bodies mean three, bodies means three parties. Whenever the three parties involve in a preventive measures, अगर preventive measures में जब तीन parties involve हो जाती है in order to resolve the issues or the conflict in a company, जब कोई कंपनी में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तीन पार्टीज आपस में कंबाइंड टुगेदर हो जाती हैं, दिस बॉडीज इज नोन एज ट्राई पार्टीज. तो तीन पार्टीज में बेसिकली होती है. द ILO इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्राईपार्टिज्म. जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इज बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्राईपार्टिज्म. इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई पार्टीज की बॉडी के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं. एंड द डायलॉग एंड द कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड द वर्कर. बेसिकली ट्राई पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? द फर्स्ट पार्टी इज द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर and the worker. It means employer and employees as well as the government. The three parties involved and try to resolve the issues of the company, or they try to resolve the issue and the dispute and conflict of a employer and employees. तो यहाँ पर तीनों पार्टीज मिलकर मीन्स गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर जो होते हैं दोनों तीनों मिलकर आपस में प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं. एंड दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी डीलिंग विद द लेबर मैटर. और इसमें बेसिकली क्या होता है? फॉर्मुलेशन होता है, एक स्टैंडर्ड वे होता है एंड पॉलिसी होती है, लेबर से रिलेटेड मैटर डिस्कस किए जाते हैं. एंड इंडियन लेबर स्टैंडर्ड आर क्रिएटेड एंड सुपरवाइज थ्रू द ट्राई पार्टीज स्ट्रक्चर. यहाँ पर बेसिकली इंडियन लेबर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं एंड इट सुपरवाइज द ट्राई पार्टीज स्ट्रक्चर. ट्राई पार्टीज स्ट्रक्चर को सुपरवाइज कौन करता है? इंडियन लेबर स्टैंडर्ड के थ्रू ये सुपरवाइज किए जाते हैं. तो दिस इज ट्राई पार्टीज बॉडी. ट्राई पार्टीज बॉडीज में बेसिकली तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है and try to resolve the issues and dispute of the company. Government, employer means मालिक and the worker, तीनों मिलकर conflict और dispute को resolve करते हैं. In India, we have a tri-parties bodies at the industry and national level. India में industries और national level में tri-party bodies हैं that help in a dispute settlement. तो in India, for the dispute settlement or the dispute resolving से रिलेटेड जो भी ट्राई पार्टीज बॉडीज हैं वो इंडस्ट्री और नेशनल लेवल में क्रिएटेड है. इंडिया में इंडस्ट्री लेवल में बनी हुई है एंड देन एज वेल एज इन नेशनल लेवल. द एम ऑफ द कंसल्टेटिव मशीनरी इज टू ब्रिंग द parties together for the mutual settlement of the differences in the spirit of the cooperation and the goodwill. Here we can see the the aim of the tri-parties is basically consultative kind of machinery. We can say that जो ये tri-parties bodies होती हैं ये basically एक consultative kinds of machineries होती हैं. It basically gives a suggestion to resolve the issues of the company. तो consultative होती है, ये suggestion provide करती है regarding the disputes and the conflict of the employees and employees की जो भी conflict होती है उनसे related suggestion provide करती है, consultative करती है. This is a consultative agencies or the machinery and it bring together. we consultative machinery tri-parties bodies क्या करती है? It bring together the government, employer and the worker and the mutual settlement के लिए इनको आपस में टुगेदर करती है एंड दे रिजॉल्व द डिफरेंसेस और इनकी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं एंड गिव देम अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड द गुडविल. तो इनके बीच में एक गुडविल एंड कोऑपरेशन क्रिएट करते हैं. दिस इज द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राई पार्टीज बॉडी. So this is all about the tri-parties body. Tri-parties body basically is a consultative machinery to resolve the dispute arises in the company. This is the preventive measures. And some of these tri-parties bodies are the
कुछ एग्जांपल्स हैं दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इज द फर्स्ट ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ट्राई बॉडीज की कुछ एग्जांपल जो है जो इंडिया में वर्क करते हैं, दैट इज द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है. द सेकंड वाज द स्टैंडिंग लेबर कमिटी. These two bodies is basically work as a tri-parties body in a company. तो कंपनी में ट्राई बॉडीज की पोस्ट में बेसिकली इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड द स्टैंडिंग लेबर कमिटी ILC एंड SLC वर्क करते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर के, द हु रिप्रेजेंट द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर, जो भी रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एज वेल एज द वर्कर. एम्प्लॉयर एंड वर्कर की बिहाफ से जो भी रिप्रेजेंटेड होंगे आर नॉमिनेटेड दिस बॉडीज. उनके जो रिप्रेजेंटेड होंगे उनको इन बॉडीज में मीन्स इन लेबर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंसेज में एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी में कंसल्टेटिव के तौर पर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है. दे वर्क एज अ कंसल्टेटिव बॉडीज in these kind of parties. एंड और यहाँ पर क्या होता है, दोनों पार्टीज के जो वर्कर एंड एम्प्लॉयर की पार्टी के जितने भी रिप्रेजेंटेड होते हैं वो कंसल्टेटिव की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कॉन्फ्रेंस, इस कमेटी के ग्रुप मेंबर बन जाते हैं. This is one important thing that the Indian Labour Conference जो है ILC and the SLC have been constituted to suggest way and means to prevent dispute. मेन ILC एंड जो ट्राई पार्टीज बॉडी हैं ये दोनों जो वर्क कर रही हैं इंडिया में, दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ILC एंड SLC क्या है, वर्क they give suggestion, ये suggestion provide करेगी and means to, and it's provide a means and methods to prevent the dispute that arises in the industry. तो इंडस्ट्री में जो भी disputes arises हो रहे हैं उनसे रिलेटेड उनके suggestion और ways provide करेगी किस तरह से कि dispute को हम कम कर सकते हैं. तो this is the one of the consultative methods, consultative kind of machineries. These two bodies work with the minimum procedure rules to facilitate free and fuller discussion among the member. What these two bodies do, these two bodies is basically is minimum procedure rules. In this committee, minimum procedure rules and होते हैं. It facilitate the free and fuller discussion among the member, और ये facilitate करती है ताकि ग्रुप के members जो हों, जो employer and worker हैं, they fully involve in the decision making ऑफ द कमेटी, उसमें दोनों अच्छे से इन्वॉल्व हो और अपनी बात को रखिए. द ILC मीट वंस इन है, जो ILC की मीट है, द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है, इट बेसिकली मीट इज कंडक्टेड इन वंस इन ईयर, एक साल में एक बार होती है. वेयर एज द SLC की जो मीटिंग होती है, इट एज व्हेन नेसेसरी, it can be conducted when it necessary or when the dispute arises. So it depend upon the conflict that when the conflict arises. तो SLC की मीटिंग कभी भी हो सकती है, but ILC की मीटिंग once in a year होती है. This is the all about the ILC, but the main important thing is I want to mention here is जो tri-parties bodies में दो important bodies है like ILC and SLC. The main function क्या होता है ILC का? The main function of the ILC is to advise the government of India matter. तो बेसिकली ILC क्या करती है, ILC इज बेसिकली गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो गवर्नमेंट इंडिया को एडवाइस करती है रिलेटेड करती है रिलेटेड टू द मैटर ऑफ एंड द इशू ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज की जितनी भी इश्यूज होती हैं उनमें एडवाइस करती है. एंड एडवाइस कैसे करती है, बेसिकली इट टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ द सजेशन मेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिस एरिया में होती है वहाँ की गवर्नमेंट की जितनी भी सजेशन होती है, दे टेक इन दैट सजेशन इनटू द कंसिडरेशन. जहाँ और उस स्टेट की और उस स्टेट के वर्कर की, उसके रिप्रेजेंटेटिव वर्कर के जितने भी सजेशन होते हैं, दिस ILCs टेक दैट ऑल सजेशन into their account and they make their decision and advice to the government of India by involving the decision of the प्रोविजनल गवर्नमेंट, स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर एंड एम्प्लॉयर के, उनके सजेशन को, गवर्नमेंट की सजेशन को, प्रोविजनल गवर्नमेंट की सजेशन को, स्टेट गवर्नमेंट की सजेशन के जितने भी सजेशंस होते हैं, इन सजेशन को कंबाइन टुगेदर करती है और उनसे एक एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. इट मीन्स दैट ILC बेसिकली क्या करती है, जितने भी सजेशन होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के
और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयर की, इन सब की सजेशन को सुनती है और इसको बेसिकली इन सब सजेशन को कंबाइन और क्लब टुगेदर करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करती है सोल्यूशन कि किस तरह से रिजॉल्व हम इशू कर सकते हैं. दिस इज द मेन वर्क ऑफ द ILC. Moving towards the function of the SLC. SLC means Standing Labor Committee. Basically क्या करती है? It consider and examine such questions such as may be referred to the central government. तो basically SLC का वर्क जो होता है वो basically जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो होते हैं क्वेश्चंस उनको डीपली एनालाइज करती है and renders advice and taking into account the suggestion made by the various government and worker. तो यहाँ बेसिकली SLC का वर्क क्या होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, जितने भी सजेशंस होते हैं गवर्नमेंट और वर्कर और एम्प्लॉयर के, इन सबको टेक into the consideration and deeply analyze and examine this kind of work or the suggestion, and they provide to the consultative solution to the dispute that arises in the company. तो SLC का मन वर्क भी यही होता है कि सजेशन जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के वर्कर के, सब सजेशन को एक साथ लेना और सब लेकर फिर एक कंबाइन एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करना ताकि डिस्प्यूट जो भी अराइजेस हुआ है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज उसको रिजॉल्व कर सके. दिस इज ऑल अबाउट द ILC एंड SLC बेसिकली tri-parties body है. They work as a preventive measures, or you can say they work as a consultative machineries to resolve the issue that arises between the company. Now moving toward the bi-parties body, as we have discussed about the tri-parties bodies. तो tri-parties body basically क्या होते हैं? Tri-parties bodies में 3 parties involved होती हैं, government, employees and the worker, employer, employees एंड द गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको ट्राई पार्टीज बोला गया है. तो बाय पार्टीज बॉडीज क्या होते हैं? बाय पार्टीज बॉडीज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द सोशल लेबर इशू आर डिस्कस्ड बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट. बाय पार्टीज मीन्स 2 parties इन्वॉल्व. 2 parties में बेसिकली ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट आती है. ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या होती है? ट्रेड यूनियन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है और लेबर के रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं उन्हें ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिकली दीज आर द 2 रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर के साइड से मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है एंड द वर्कर की साइड से ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ दोनों पार्टीज जो होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जो हैं, ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट कंबाइन टुगेदर एंड टू ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर की जो भी रिजॉल्व इशू करती है. और दिस इज बेसिकली कंसल्टेटिव मशीनरीज. बेसिकली क्या है? इट प्रोवाइड अ सजेशन. तो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट बाय पार्टीज बॉडीज नेगोशिएशन नहीं करती है, ये बेसिकली आपको सजेशन प्रोवाइड करती है ताकि सजेशन के थ्रू जो भी इश्यूज हैं, जो भी डिस्प्यूट है, उन्हें रिजॉल्व किया जा सके. वी कैन से दैट बाय पार्टीज बॉडीज बेसिकली इंडिया में 2 टाइप की बाय पार्टीज बॉडीज है. वर्क कमेटी एंड द ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है बेसिकली वर्क एज अ बाय पार्टीज बॉडीज. दीज बॉडीज वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट मेथड दैट इज अ वर्क पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हमने इन दोनों मेथड्स को पढ़ा था. तो जिससे बेसिकली बाय पार्टीज बॉडीज होती हैं जो बेसिकली वर्क एज अ कंसल्टेटिव मशीनरीज टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंपनी. तो दिस इज अ प्योरली कंसल्टेटिव एंड नॉट नेगोशिएशन बॉडी विद द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर. जी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर एंड वर्कर के. वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? ट्रेड यूनियन. एंड द एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मैनेजमेंट. दे कंबाइन टुगेदर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द gives the solution or the suggestion to the issue that arises between the management and the issue arises between the employer and the employees. जो भी इश्यूज रिजॉल्व आए हैं कंपनी में एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के बीच में, उनको सजेशन प्रोवाइड करती है कि हाउ दे कैन रिजॉल्व द इश्यूज एंड दे प्रोवाइडिंग solution how to deal with the dispute that arise in the plant and industries. Bipartite bodies जो consultative machineries are established under the 2010 में ये bodies establish हुई थी.
दे डेमोक्राइज द इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडियन रिलेशन में डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू लाने के लिए इस तरह की बॉडीज क्रिएट हुई थी, क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, मोस्टली द इश्यूज इज रिजॉल्व बाय द एम्प्लॉयर साइड एंड दे नॉट इन्वॉल्विंग द वर्कर इन देयर डिस्प्यूट रिजॉल्विंग इशू। सो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेट हो गया है, मीन्स लेबर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इन देयर डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर, और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दे ऑल्सो गेट इन्वॉल्वमेंट, और उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, और इनको इन्वॉल्वमेंट उनकी लेबर ट्रेड यूनियन के थ्रू उनको इन्वॉल्व किया जाता है। द जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रेड यूनियन को बताते हैं, द ट्रेड यूनियन होते हैं दे ट्राई टू दे पुट पुट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉइज in front of the uh, in front of the management. तो दिस इज द बाईपार्टीज बॉडीज होते हैं। दिस इज द जॉइंट कमिटी वर इंट्रोड्यूस इन द टिस्को एट जमशेदपुर। जॉइंट कमिटी जो बेसिकली जो बाईपार्टीज कंसल्टेटिव है, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम पे इंडस्ट्रीज। जमशेदपुर की इंडस्ट्री है, एक टिस्को इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ये सबसे पहले बाईपार्टीज बॉडीज फॉर्मेशन हुआ था। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल सबसे पहले बनी थी in order to resolve the issue of the employees and the employer. Now moving towards this is the work committee and the joint management council, two bodies, two bipartite bodies hai. We can give this example as the two bipartite bodies in India. Work committee, this committee established within the industrial dispute to prevent and settle dispute at the unit level. कोई भी कंपनी में इंडस्ट्री लेवल में जो भी इश्यूज होते हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए एंड टू प्रिवेंट करने के लिए there are the two work committee are formed, that is a work committee, and this compromises the equal representative of the management the worker. दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वर्कर के भी और एम्प्लॉइज के भी। एम्प्लॉयर के जो वर्क रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मैनेजमेंट होते हैं, और जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दिस इज बेसिकली अ ट्रेड यूनियन, और दोनों मिलकर वर्क कमेटी में वर्क करती है एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो भी इश्यूज होते हैं एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर की, उनको प्रिवेंट करती है, उन्हें सेटल करती है डिस्प्यूट को एट द यूनिट लेवल। यूनिट लेवल में इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करती है, रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। दिस इज द वर्क ऑफ द work committee. Now moving toward the joint management council. What the joint management council do? Joint management council was established with the concept of progressive joint consultative between the management technician and the worker. joint council management में basically management technician और worker सब तरह के groups को involve किया जाता है, and this council is basically entitled to discuss various matter relating to the establishment and the recommendation step for its better working and have equal representative of the worker. In the joint management council, they not only discuss and give the suggestion and the consultation related to the dispute, but they also discuss about the how the company can work better in a better way or in an efficient way, and this is ensured by the participation of the worker management and the technician. तो सबको इन्वॉल्व किया जाता है और डिस्कस किया जाता है वेरियस मैटर रिलेटेड टू द कंपनी के बहुत सारे रिलेटेड मैटर को डिस्कस किया जाता है इन दिस काउंसिल. दिस इज द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. So we have discussed about the bipartite bodies. Now moving towards the fifth preventive measures, that is basically कोड ऑफ डिसिप्लिन. तो कोड ऑफ डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा यही है. डिसिप्लिन मीन्स टू डू द थिंग्स इन अ डिसिप्लिन मैनर और इन अ राइट मैनर. कोड मीन्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. तो जब भी हम कोई भी चीज डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ सेल्फ imposed mutually agreed voluntary principles of the discipline and good relation between the management and the worker in the industry. कोड ऑफ डिसिप्लिन बेसिकली क्या हो, एम्प्लॉइज जो होते हैं वो अपने आप को सेल्फ इम्पोज करते हैं. दे मेक themselves as they try to resolve the issue that arises in the company. तो वो खुद ही अपने आप को ही इस तरह से वॉलंटरी अपने आप को प्रिंसिपल कर देते हैं in the principles of discipline. So a good relation between the management, तो अपने एक बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के साथ, ताकि कोई भी तरह का इशू एंड डिस्प्यूट जो हो वो क्रिएट हो ही ना, और अगर हो तो इजीली रिजॉल्व हो जाए बाय द गुड रिलेशन. तो दिस इज द सेल्फ इम्पोज और यू कैन से सेल्फ स्टेप मेथड टू रिजॉल्व द इशू. तो ये कोड ऑफ डिसिप्लिन में इम्प्लाइज खुद अपने आप को डिसिप्लिन करता है, और बेसिकली इट्स अ वॉलंटरी काइंड ऑफ मेथड वेयर द
implies is follow the rules and regulation of the company, and without any pressure from the external pressure from the employer side. They self motivated to maintain the good relation in the company. They are self motivated and try to resolve the issue within himself. तो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है एंड मेंटेन द कोड ऑफ डिसिप्लिन्स. This is a code of disciplines was approved by the Indian Labour Conference held in 1958. 1958 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, एंड दिस कॉन्फ्रेंस में कोड ऑफ डिसिप्लिन को अप्रूव किया था. दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स और यू कैन से द मशीनरी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन द कंपनी. अगर कोड ऑफ डिसिप्लिन को एम्प्लॉइज फॉलो करता है तो मैक्सिमम टाइम्स जो होते हैं वो अपने आप को खुद ही अपने कोड एंड डिसिप्लिन्स को फॉलो करके कंपनी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे फॉलो करके कंपनी को वो डू एंड डोंट्स उसे पता होते हैं. दे फॉलो द डू एंड डोंट्स ऑफ द कंपनी विथ हिमसेल्फ विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द अदर साइड, और वो अपने आप भी सेल्फ मोटिवेटेड होके फॉलो करते हैं. एंड दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द कोड ऑफ डिसिप्लिन विच गाइड द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो यहाँ एम्प्लॉयज अपने आप ही खुद सेल्फ मोटिवेटेड होके मोटिवेटेड होकर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. एंड दे ट्राई टू अवॉइड द इशू दैट इन द कंपनी. तो कंपनी में जितने भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने की खुद ही कोशिश करते हैं. तो वन ऑफ द एग्जांपल आई कैन गिव हियर दैट the first example that if the employee give promise that they will not harm any property of the employer. अगर वो किसी भी एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करेंगे, दे प्रॉपरली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉयर की जितनी प्रॉपर्टी है उसको खुद की प्रॉपर्टी समझ के वर्क करेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द कोड ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन पुट हेयर. तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कि हम कोई भी इश्यूज अराइजेस होंगे ही नहीं और कॉन्फ्लिक्ट का कभी भी रीजन नहीं बनेंगे. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन टेक सो दैट द डिस्प्यूट कैन नॉट बी अराइजेस. तो इसके थ्रू एम्प्लॉइज अपने आप ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप. दिस इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स through which we can or the company can resolve the issue or the dispute arises in the company. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड हेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो किस तरह से हम पहले से ही डिस्प्यूट होने से पहले ही अगर हम कुछ स्टेप ले लें जिससे डिस्प्यूट क्रिएट ही ना हो, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स मेजर्स को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स. और यहाँ एक स्टेप लास्ट है. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड वी कैन से स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली रिलेटेड टू द इम्प्लॉयमेंट टर्म्स और कंडीशन. तो वी कैन से दैट जब भी इट्स बेसिकली ऑर्डर governing the condition of the employment under the Industrial Employment Act 1946. इंडियन जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है 1946 में, तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में यहाँ बताया गया था. और ये बेसिकली इट्स कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ एक्ट. तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर बताया गया था. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर वी कैन से इट्स बेसिकली डू एंड डोंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज. तो ये डू एंड डोंट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को पहले ही बता देते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी. तो एज यू नो दैट वेन एवर यू गेट जॉब इन अ कंपनी, तो यू गेट कॉल लेटर, and in this joining letter here some kind of a terms and condition is you have seen. तो जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो उस ज्वाइनिंग लेटर में एम्प्लॉयर पहले से ज्वाइनिंग लेटर में एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है विच आर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन फॉर द एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉइज के लिए टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है. एंड इन दिस टर्म्स एंड कंडीशन डू एंड डोंट्स आर मेंशन. And if you accept that terms and condition, you accept the join letter and you join the company. और अगर आप उस डू एंड डोंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे. तो जी बेसिकली जो डू एंड डोंट्स होते हैं जो हमें ज्वाइनिंग के टाइम पर मिलते हैं, दिस इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर. और एम्प्लॉयर पहले से ही अपने स्टैंडिंग ऑर्डर क्रिएट कर देता है, एम्प्लॉयमेंट्स की टर्म्स और कंडीशन क्लियर कर देता है. दिस इज दिस वे यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क. और यहाँ पर अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशन डू एंड डोंट्स अगर क्लियर हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय
during their working life within the organization is बेसिकली इज डिस्कस विद द एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज को स्टैंडिंग ऑर्डर में उनको डू एंड डोंट्स, उनको कोड ऑफ कंडक्ट इन अ कंपनी इज डिस्कस. तो कोड ऑफ कंडक्ट में उनको बताए जाते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में पहले से ही एम्प्लॉयज को बता दिया जाता है कि उनके डू एंड डोंट्स क्या है कंपनी में काम करने के लिए, एंड व्हाट दे हैव टू बी डू एंड व्हाट दे डोंट हैव टू बी डू इन देयर वर्किंग लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड इफ द कंपनी जो एम्प्लॉयज है, इफ दे फॉलो दिस standing orders in a proper manner, then the any kind of a dispute or issue would not be arises. तो these order regulate the condition of the employment. तो what the these standing order is do, इस standing order में basically क्या होता है, condition of employment is mentioned, and the discharge से related जो भी condition होती है mention होती है, grievances जितनी भी problems होती है उनसे related rules and condition mention होती है. They already mention if you have any kind of problem you can immediately inform that person or person. उनको पूरे rules and procedure discuss होते हैं in this standing order. And misconduct related rules and guidelines also mentioned in the standing order papers, or disciplinary actions also mentioned in this standing order. Disciplinary action means what to do and what don't to do in the company. तो disciplines related actions होते हैं कि you have to be perform that task in that way. तो ये सब conditions and rules and regulation conditions जो होती है वो standing orders में mention होती है और ये regulate करता है. And the workmen are employed in a इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो कंपनी में जो वर्कर मैन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उन सबको टर्म्स और कंडीशन, डिस्चार्ज, ग्रीवेंस प्रोसीजर, मिसकंडक्ट and the discipline actions are mentioned in this standing order. In short, we can say these are the order related to the condition of the employment. ये ऐसे order होते हैं जिसमें कि employment की condition को mention किया होता है. Under the Industrial Employment Standing Order Act 1946 में इसके बारे में बताया हुआ है. Standing order words कहाँ से आया? Is basically it's come out from the Industrial Employment Act 1946 में इसके बारे में discuss किया हुआ है. Standing order में पूरी conditions of employment discuss होती हैं. It also regulate the condition of employment from the entry level to the exit level. तो कंपनी में कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी एम्प्लॉय जब एंट्री करता है, the standing order के थ्रू they get to know about the all and rules and regulation and the condition of the employment from entry level to exit level of the employees. So employees की जो entry level से लेकर exit level तक जो भी terms of condition होती है, these all terms and condition are discussed or explained in the standing order. And this code of, you can say, standing order basically a code of conduct during their service in the company. This standing order is basically discuss about the code of conduct, how to behave, how to conduct their work during their service in the company. तो ये basically standard order कंपनी में एम्प्लॉइज को उनके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है. अगर एम्प्लॉइज इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो कोई भी इश्यूज अराइजेज नहीं होंगे, और इशू अगर अराइज हो भी गए होंगे तो इश्यूज से रिलेटेड पूरे कोड ऑफ कंडक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई ग्रीवेंसेस पॉलिसी हर चीज़ मेंशन होती है. तो इजीली अगर स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत क्लियर कट है और बहुत कंप्लाइज एक्सेप्ट करता है तो कोई भी इश्यूज अराइजेज होंगे नहीं. तो वी कैन से दैट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इशू of the employees, initial issues of the employees that are arises in the company, तो ये इनिशियल स्टेज में ही स्टॉप हो जाएंगे और कभी भी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का रीजन नहीं बनेंगे. तो दिस ऑल 6 मेथड आर बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स वी कैन टेक बिफोर द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन द कंपनी. तो हम इफ वी टेक दिस मेथड्स वेरी बहुत ही जल्दी से और बहुत ही इफेक्टिव मैनर में अगर हम इन मेजर्स, इन प्रिवेंटिव मेजर्स को लेते हैं तो कंपनी में डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होंगे ही नहीं. तो दिस इज ऑल अबाउट द 6 मेथड वी हैव. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट topic in examination point of view as well as in this subject. The most of the time we have discussed about the conflict in industrial रिलेशन सब्जेक्ट. तो रिलेशन सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट में को रिजॉल्व कैसे करेंगे और उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन अवॉइड सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेज इन द कंपनी बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइजेज होते हैं उनको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज हो ही ना.
तो ये 6 मेथड है वी हैव डिस्कस एंड दिस इज इम्पोर्टेंट topic. And in the next lecture video we will discuss about the part 2, that is a we can say the settlement measures. हमने अभी preventive measures discuss किए. Now we would discuss about the सेटलमेंट डिस्प्यूट की. अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं तो उसको सेटल कैसे करेंगे, हाउ टू एमिकेट द हाउ टू एमिकेट द डिस्प्यूट, हाउ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजेस. तो we will discuss about the settlement measures in the next video. This is all about today topic. Thank you, my dear student.